जैसा मैंने बोला. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू very much for your immediate response. As I have told you, this is again a very important unit which is regarding the one of the best qualities or one of the required qualities of the concrete, that is the durability, understanding the durability. डी स्ट्रेस यानी कंक्रीट में स्ट्रेस मैंने आपको समझा दिया था बहुत बार कि जब कोई किसी स्ट्रक्चर के ऊपर में लोड अप्लाई होता है तो वो लोड से या वो फोर्स से बचने के लिए या वो फोर्स को अपोज करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर में, स्टील स्ट्रक्चर हो, कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, वुडन स्ट्रक्चर हो, तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. और वो स्ट्रेस यदि वो स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो फिर वो स्ट्रक्चर फेल होता है, उसको क्रैक्स आते हैं. तो ये स्ट्रेस से जो भी लॉसेस होते हैं उसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस दैट इज द effects of the stress. And then we'll be discussing about the effects due to stress, that is the cracks. As I have told you, nowadays it has become a problem, or somebody finds the opportunities into the problem, because the structures are built up, but maybe due to the distress, maybe due to the certain quality problem, or some problem in constructional methodology, or maybe due to the durability problem, the structure gets cracks. To avoid the structure to further deterioration and failure, there are various methods to repair those cracks. There are various methods to repair the distress that we will be learning. Then at last, we will be discussing about the non-destructive test in concrete. In our syllabus, two tests are included. They are the pulse ultrasonic testing machine, or it is called as the Schmidt hammer or the rebound hammer. Two tests are there. First is the pulse ultrasonic testing machine. Some ultrasonic rays etc. are used to know the health of the concrete, and second is the rebound hammer or the Schmidt hammer. So durability, distress, cracks, and non-destructive test in concrete. These are the final we will be trying to learn. I just trying to get why the recording is not yet started. Because I am not getting that sound of recording. Okay, it's all right. Let us start in spite of the somebody latecomer is there.
So let us begin the discussion. You can see in the first slide, to know the meaning of durability of any concrete structure. Let us see this photograph. This is a jetty. Jetty is a structure in the in the sea or ocean. Marine structure it is. And it is a concrete structure. As it came into contact with the sea water, as well as the salty winds and weather, how the concrete got deteriorated, how the reinforcement is exposed, how the as the proper cover to the concrete with respect to reinforcement is not given. Therefore, the concrete which was covering to the reinforcement has fallen out. That is called as the spalling of concrete. Spauling, spalling of concrete. यानी कंक्रीट का पोपड़ा निकल जाता है लोहे को छोड़ के, उसमें जो रीइंफोर्समेंट है उसको छोड़ के कंक्रीट का पोपड़ा जब बाहर निकल जाता है तो उसको स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं. ये हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे. स्पॉलिंग कभी नहीं आया डिस्कशन में तो मुझे बाद में याद दिला देना कि क्यों होता है ये ऐसा स्पॉलिंग. तो ये ऑल दिस थिंग्स has happened to this structure due to the improper care that has been taken during construction of the concrete, during construction of the structure, which resulted in losing its durability, losing its life, and either this structure necessitated डिमोलिशन और रिपेयर्स. क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो अभी मैं आपको शायद स्लाइड पे दिख रहा होगा, ये एक जेटी करके स्ट्रक्चर है. इसको जेटी बोलते हैं, जेटी. ये समंदर में रहता है. जहाज वगैरह या छोटी छोटी बोट्स आने जाने के लिए, रुकने के लिए ये समंदर में रहता है. एक आधे बड़े नदी में भी रहता है. कंक्रीट का स्ट्रक्चर रहता है. और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसके सब कंक्रीट जो रीइंफोर्समेंट को कवर किया है उसको क्रैक्स गए हैं, उसके पोपड़े निकले हैं. उसको स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट करके बोलते हैं. तो ये क्यों हुआ है ये सब? तो ये इसलिए हुआ है कि ये स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कम हो गई, इसका लाइफ कम हो गया है, इसका रेजिस्टेंस टू द सराउंडिंग वेदर as it was not properly constructed, वो उसको बराबर क्वालिटी और मेथोडोलॉजी बांधकाम के दरमियान केयर नहीं लिया गया, इसलिए ये ऐसा हुआ. तो इसलिए ये जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है ये समझना बहुत जरूरी है. In our syllabus, that is this unit number 6, we have these much 4 components. Durability of concrete, in which significance first, what is the durability, its significance. Second is water as an agent of deterioration. कंक्रीट में पानी वो कंक्रीट को खराब करने का कैसा एक एजेंट जरिया रह सकता है, ये हमारे सिलेबस में, जिसके ऊपर हर साल एक नोट आती है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ द वाटर acts as an agent of deterioration. Then the third is permeability of concrete. Next is efflorescence. उसके बाद में distress in concrete structures and its causes. Again मैं बताता हूँ, distress है ने स्ट्रक्चर जब उसके अंदर स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, वो जब वो सहन नहीं कर सकता, समा नहीं सकता, तो उसमें फिर कुछ क्रैक्स या फेल्यूर दिखाई देता है. So from the concrete quality point of view, what are the causes of these distresses?
That is the causes of deterioration of concrete. Then cracks in concrete, its causes, types, prevention, repairs of the cracks, materials and methods. And last, very important, that is the non-destructive testing of the concrete. Now what is durability of concrete? अभी तक हम देखते आए, पहले यूनिट से मैं आपको हैमर करते रहा, आपको ये स्ट्रेस देते रहा कि कंक्रीट को तीन जो क्वालिटी है, ये जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी आर द थ्री बेसिक क्वालिटीज नीडेड फ्रॉम द कंक्रीट. ये आप जिंदगी भर ध्यान में रखना. ये तीनों अचीव किया तो आप यू विल बी ए वेरी सक्सेसफुल engineer, not only concrete engineer but engineer. And what to do for this? I think you all have doctored up till now. अभी तक आपको मैंने जो समझा दिया वो यदि आपके बराबर ध्यान में आया होगा तो ये तीनों चीजें हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है ये भी आपके ध्यान में आया होगा. और ये ड्यूरेबिलिटी चैप्टर तो समझने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी आप खुद ही मुझे पढ़ा सकेंगे ऐसा मुझे लगता है. I have regularly told you that durability is always associated with permeability. Lesser permeable the concrete, more will be durability. More permeable the concrete, lesser will be durability. And what are the various causes for permeability? That also you must be knowing. We'll be discussing one by one. जो आपको मालूम है उसको हम रिवीजन करेंगे, अभी थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में समझते जाएंगे, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. So durability is defined as its ability to resist weathering action. है ना, concrete is always exposed to various weathers, to various. Sometimes the concrete structure is constructed in a heavily rainy areas like the Cherrapunjis or the northeast area or the Himalayan area. Sometimes the concrete structure is in Rajasthan or like in our Vidarbha, where the temperature ranges from 8 degrees to 48 degrees. The rainfall is more than 100 centimeters. Okay. In winter season, the temperature reduces to 8 degrees Celsius, 7 degrees Celsius, and in summer, it moves to 48 degrees. तो कंक्रीट को इतने वेदर कंडीशन में रहना पड़ता है, तो उसको उसके और ये वेदर कंडीशन का कंक्रीट के ऊपर में बहुत इफेक्ट होता है. टेम्परेचर जैसा 8 डिग्री से 48 डिग्रीज होता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो कंक्रीट, है ना, हमको सबको मालूम है कि लोअर द टेम्परेचर द मटेरियल, मे बी कंक्रीट, मे बी स्टील, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. मोर द टेम्परेचर, lower the temperature contracts, more the temperature expands. तो इतना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन को कंक्रीट को सफर होना पड़ता है. बारिश आती है तो बहुत सारा पानी गिरते रहता है. ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी यानी ये वेदरिंग कंडीशन, वेदरिंग एक्शन जो है, धूपकाले में हवा बहती है, विंड इज वेरी हाई. You must be learning about the weathering in your geology. So the durability is the ability to resist the weathering action, the chemical attack, है ना. concrete structures जो होते हैं बहुत सारे, ये एखादे बार किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं. एखादे मरीन स्ट्रक्चर जैसा सबसे पहले मैंने बताया, समंदर में का स्ट्रक्चर, समंदर में बहुत टाइप के वेस्ट आते हैं, केमिकल्स आते हैं, समंदर के पानी में सॉल्ट रहता है. या एखादा कंक्रीट का स्ट्रक्चर, एखादे कुछ केमिकल्स जहां प्रोड्यूस होते हैं, पेंट्स जहां प्रोड्यूस होते हैं, पेट्रोल जहां प्रोड्यूस होता है, वहां पे कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स रहते हैं.
तो उसको वो केमिकल अटैक उसके ऊपर होता है तो उसको उसने रेजिस्ट करना चाहिए, ना कि केमिकल अटैक में डिटीरियरेशन होना चाहिए. So ability to resist weathering action, chemical attack, abrasion, that is resistance to friction, है ना. जैसे हाईवे पे का कंक्रीट के हाईवे रहते हैं, रनवे रहता है, एयरपोर्ट्स रहते हैं, गोडाउन के फ्लोरिंग रहते हैं, इसके ऊपर से व्हीकल पास होते हैं, एरोप्लेन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रनगाड़े जाते हैं हाईवे के ऊपर से, तो उसके कारण रास्ता घिस सकता है, घिसता ही है. तो उसको भी उसने रेजिस्ट करना चाहिए. एब्रेजन उसको बोलते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शन. एब्रेजन मीन्स losses into the structure, into the concrete due to the movement of vehicle and the frictional forces that has been created, or any other process of the deterioration. That this resisting ability of the concrete is called as the durability of concrete. Because if the concrete resists all these parameters, then the life of the concrete will be more. So life is associated with the durability, and durability is nothing but the ability to resist the weathering action, the chemical attack, abrasion. As I have told you, the anticipated exposure conditions during that concrete structure service are very much from, as I have told you, some structures are exposed to heavy rains, some structures always remains in contact with the water, जैसे कि हमारे डैम्स रहते हैं, रिजर्वायर्स रहते हैं, कुछ ब्रिजेस रहते हैं, पानी के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं. तो ये सब इसको एक्सपोजर कंडीशन को उसने सहन करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए. So when exposed to environment, durable concrete will retain its original form. यानी समझो वो क्यूबिकल फॉर्म में है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना. बहुत सारे शेप्स रहते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के, तो वो फॉर्म उसका हरदम कायम रहना चाहिए, ना कि वेदरिंग के कारण उसमें क्रैक्स आए, फ्रैक्चर्स आए और उसका ओरिजिनल शेप ये बदल जाए, है ना. क्योंकि उसके ऊपर ओरिजिनल फॉर्म जो रहता है, जैसे रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, सर्कुलर बीम है, सर्कुलर कॉलम है, स्लैब्स है, ये सब स्ट्रक्चरल मेंबर करके एक्ट होते हैं. वो रेक्टेंगुलर है ऐसा समझ के ही उसका डिजाइन किया जाता है. तो उसका फॉर्म यदि चेंज हो गया तो उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, और वो मेंबर, जो भी कंक्रीट मेंबर है, वो स्ट्रक्चरली एक्ट होगा नहीं बराबर. सो व्हेन दिस कंक्रीट member or concrete is exposed to environment, it must be durable and must retain its original form, its quality. यानी जो क्वालिटी का पहले बनाया है कंक्रीट, वही क्वालिटी आखिरी तक रहे, यानी जितना उतना उसका लाइफ एक्सपेक्टेड है उतने लाइफ तक के. एंड द सर्विसएबिलिटी, यानी जिसके लिए वो स्ट्रक्चर बनाया है, एखादा स्टेडियम यदि क्रिकेट का स्टेडियम है और मैचेस देखने के लिए बनाया है, हजारों लाखों लोग देखने आते हैं, तो उतने लोगों का लोड उसने लेना चाहिए, ना कि टूटना चाहिए. एखादा ब्रिज बनाया है, एखादा रनवे बनाया है, एखादा कंक्रीट का रोड है, तो इट शुड सर्व इट्स पर्पस ऑफ द रोड एज द रनवे, एज द स्टेडियम, एज द बिल्डिंग, एज द थिएटर, जो भी कंक्रीट का बनाया है. So all these things are expected from a durable concrete. So I think in short, all of you must have understood the concept of durability.
That is the concrete performance in long term, है ना, long term durability, concrete performance in long term, wherein the concrete deteriorates, concrete का destruction होता है, concrete खराब होता है, deterioration यानी उसका नुकसान, काय के कारण, थर्मल क्रैक्स, केमिकल प्रोसेसेस, रीबार करोजन, रीबार यानी रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट करोजन होता है, डेटीरियोरेशन श्रिंकेज और क्रीप के कारण होता है, हमने कल ही पढ़ा है श्रिंकेज और क्रीप क्या है। तो श्रिंकेज और क्रीप्स के कारण, श्रिंकेज के कारण क्रैक्स होती है, क्रीप के कारण उसके डायमेंशन कम होते हैं या डायमेंशन बढ़ भी सकते हैं, तो उसके कारण उसका फॉर्म और शेप बदल सकता है। माइक्रोपोरोसिटी, उसमें माइक्रो लेवल पे पोर्स रहे, वाइड्स रहे। हाइड्रेशन मैकेनिज्म में, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, during the concrete is being transported or the precasted member is being transported, and the water in the capillaries of the concrete, all these results into the deterioration and ultimately affects to the concrete performance, that is the durability of concrete. Now friends, we will try to understand the significance or the how does this durability characteristic or durability property of the concrete is important, and what for its study is necessitated as compared to the other properties of any structure like the mechanical properties and its cost, etc. With reference to this, how the durability is related, that we will try to understand. First and foremost is the socio-economic implication of the durability. Means what? You may be knowing that to construct a small bridge, छोटा सा भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है आज हमें, तो भी उसको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है, और कीमत बढ़ते ही जाती है। यानी आजकल कॉस्ट इतनी बड़ी है कि once you construct a structure, it needs crores of the rupees, lakhs of the rupees, and where from this money comes? It comes from the tax paid by the common citizen. तो इसलिए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी, हमारा खुद का भी घर रहे तो भी हम उसको पैसा लगाते हैं, रोड बनता है उसके लिए गवर्नमेंट देता है, कहां से देता है? टैक्स कलेक्शन से ही देता है। तो इसलिए वो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल रहना चाहिए। वो यदि ड्यूरेबिलिटी कम है तो फिर आखिर में उसका इफेक्ट ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर होगा, या सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जिसको बोलते हैं, इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी, because the increase in the repair and replacement cost of the structure from the material failure have become a substantial portion of the total construction budget. यानी एखादा स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कम हो गई, जल्दी वो डैमेज हो गया, क्रैक हो गया, एक तो उसको दुरुस्त करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए, नया स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत खर्चा आता है। तो वो खर्चे से बचना यदि है तो हमें क्या करना चाहिए? इंजीनियर्स टू गो फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वी शुड टेक प्रिकॉशन, all the utmost precaution to make the concrete durable. So socio-economic implication is very important. Also there is a relation between the durability and ecology, क्योंकि आखिर में कंक्रीट बनता कैसे है? सीमेंट, पानी और एग्रीगेट, और ये तीनों चीजें कहां से मिलती है? From the atmosphere, from our surrounding, from the earth, from the natural resources, है ना। सीमेंट बनता है तो लाइम से बनता है,
सिलिका से बनता है, उसको कैल्शियम सल्फेट बाद में ऐड करना पड़ता है, फिर उसको 1400-1500 डिग्री तक के गर्म करना पड़ता है। एग्रीगेट भी कहीं से तो भी क्वारी से स्टोन लाना पड़ता है। तो यदि स्ट्रक्चर इकोलॉजिकली यानी ड्यूरेबिलिटी यदि उसकी अच्छी ना हो, इफ द स्ट्रक्चर विल नॉट बी ड्यूरेबल, then we will need to repair it or to replace that structure with the new structure. Again, for the old structure, we have used or spoiled certain natural resources in the form of the cement and the aggregate, as well as for the new structure also we will need the natural resources like the aggregates, etc. So for both the purposes, the nature is losing the material, है ना, इसलिए we must be very careful while constructing the structures, not only from the material quality point of view, from the construction methodology, during construction and after construction also we should take precaution, because the concrete is exposed to very hostile environment. Means what? The concrete is exposed to very severe atmospheric conditions. एक्सपोजर कंडीशन जो हमने देखा है, बाद में मैं बताता हूँ, वो आप याद कीजिए। कंक्रीट मिक्स डिजाइन में टेबल नंबर 5, पेज नंबर 20, IS 456, एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट टू सीवियर, वेरी सीवियर। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है ये होस्टाइल एनवायरमेंट यानी बैड एनवायरमेंट, बैड सराउंडिंग which affects to the concrete quality, which affects to the structure of the concrete, which deteriorates the concrete structure. ऐसे environment को concrete structure को expose होना पड़ता है। कहाँ पे? Such as the offshore platforms in sea, जब अभी जैसा मैंने आपको जेट्टीज का एग्जाम्पल दिया कि offshore platforms in sea, containers for handling the liquefied gases at cryogenic temperatures, है ना। कंक्रीट के कंटेनर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं जिसमें लिक्विफाइड गैसेस हम स्टोर करते हैं एट द क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स। हाई प्रेशर रिएक्शन वेसल्स इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री जो है, एटॉमिक पावर प्लांट्स एक्सेट्रा, वी यूज सर्टन हाई प्रेशर रिएक्शन वेसल्स, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स अगेन, तो ये कंक्रीट के बने रहते हैं। तो इन सभी एक्सपोजर कंडीशन के कारण कंक्रीट का डिटीरियरेशन होता है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम होती है और कंक्रीट का लाइफ कम होता है, हो सकता है। वॉल्यूम चेंज इन द कंक्रीट इज आल्सो वन ऑफ द significant cause for the deterioration of concrete. Volume change in concrete results in lack of durability and causes for the volume change क्या है ये आप सबको मालूम है, लेकिन फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज क्यों होता है? वॉल्यूम चेंज यानी श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। व्हाई इट टेक्स प्लेस? As I have been telling you again and again, concrete is a heterogeneous material made up of the cement, water and the aggregate. The aggregate is a neutral material, inert material, harder material. It does not shrink. So which shrinks? Cement and the water phase shrinks. And this uneven shrinkage results in the volume change of the concrete and results in formation of the crack. है ना। कंक्रीट जो है ये कंक्रीट अलग अलग मटेरियल से बना है, एक ही मटेरियल से नहीं बना, जिसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। HATEROGENEOUS, हेट्रोजीनियस, है ना। आपको बार बार मैं वर्ड यूज करता हूं। हेट्रोजीनियस का अपोजिट है होमोजीनियस।
तो कंक्रीट ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है ना। आपको एक आध बार क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बार बार हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? अभी मैंने स्पेलिंग आपको बताया, HATERO, हेट्रो, GENEOUS, हेट्रोजीनियस। अलग अलग मटेरियल से बना है, एक मटेरियल का कंक्रीट नहीं बना है। और उसमें से गिट्टी जो एग्रीगेट है वो नहीं श्रिंक होता, वो तो हार्ड रहता है, इनर्ट रहता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं रहती, ऐसा एक्सपेक्टेड है एग्रीगेट से। लेकिन सीमेंट और वाटर पेस्ट जैसे जैसे सेट होते जाता है हाइड्रेशन के कारण, तो वो श्रिंक होते जाता है। तो कंक्रीट में एक पार्ट श्रिंक होता है, एक पार्ट नहीं श्रिंक होता, तो उनमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, अनइवन श्रिंकेज आप सोच सकते हैं, और उसके कारण उसमें उसको वॉल्यूम चेंज करके बोलते हैं, और उसके कारण रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी माइक्रो हेयर क्रैक्स। And since unit number 1, we are repeating it again and again, the volume change in the concrete. It is one of the cause of the deterioration. Reasons, I think you all must have understood. The first is the entire hydration process is nothing but the internal volume change, the effect of the heat of hydration. Hydration process is nothing but the chemical reaction between water and the cement, CSH gel formation, etc. Second reason for the volume change is the sulfate action. Sometimes the concrete structure is exposed to such an environment, such an atmosphere, where the sulfates are there, SO4 or SO3 are there, है ना। एक आध बार कंक्रीट जैसे मरीन स्ट्रक्चर में, समंदर में बहुत सारे वेस्ट आते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स भी आते हैं सॉल्ट के साथ में, तो वो सल्फेट के कारण कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपांड होता है कंक्रीट, अनसाउंडनेस जिसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, है ना। हम पढ़े हैं कंक्रीट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, उसको भी अनसाउंडनेस है, और सल्फेट को भी अनसाउंडनेस है, यानी स्वेलिंग प्रॉपर्टी है। कार्बोनेशन हमने अभी पढ़ा है श्रिंकेज, वन ऑफ द श्रिंकेज इज कार्बोनेशन श्रिंकेज, action of the concrete with the carbon dioxide in the atmosphere in presence of the water, or action of the cement. CSH gel reacts with carbon dioxide plus water to form the calcium carbonate, and this calcium shrinks. So that is the one of the cause of the volume change. Moisture movement, all types of the shrinkage. Movement of the moisture in the concrete results in all types of the shrinkage. We have learned this, evaporation, etc. And also moisture movement results in the creep also. Shrinkage and creep, I think everybody of you must have understood very well. So movement of the moisture from the concrete results in all types of the shrinkage, that is the drying shrinkage, autogenous shrinkage, carbonation shrinkage, and plastic shrinkage. The effect of the chlorides. Sometimes the concrete comes in contact with the chlorides, like this sodium chloride, when the concrete is in sea or the marine structures. Or sometimes the soil contains chlorides, and the foundation or the subflooring, mezzanine flooring, or the basement of the structure, or the foundations. These foundations come in contact with the soil, the basement, the foundation may be a pile foundation, may be a column foundation, footing, that comes in contact with the soil which contains the chlorides, and that chlorides results in the rusting of the steel
reinforcement into the concrete, and which results in the volume change. क्योंकि लोहा जब कंक्रीट के अंदर का रस्ट होता है, गंजता है, करोजन होता है, तो वो लोहे का भी वॉल्यूम बढ़ता है, वो एक्सपांड होता है, फूलता है, स्ट्रेंथ उसकी कम होती है, वो फूलता है, और कंक्रीट में फूलता है, एक्सपांड होता है, तो उसके कारण कंक्रीट में क्रैक्स होते हैं. So one of the all these are the causes for the volume change in concrete, which are very significant and which results in the formation of the cracks to make the concrete permeable. So permeability leading to volume change results in cracks that promotes more permeability, and thus it becomes a cyclic. यानी इन वॉल्यूम चेंज के कारण कंक्रीट परमिएबल होता है. परमिएबल होना यानी क्या कि कंक्रीट सच्छिद्र बोलते हैं, बोलेंगे हम मराठी या हिंदी में. उसमें बारीक बारीक क्रैक्स, बारीक बारीक छेद हो जाते हैं, और बाहर का जो पानी है वो उसके अंदर घुसता है पानी के साथ में फिर से, और केमिकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और फिर क्रैक फॉर्मेशन होता है, फिर से रस्टिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट, ऑल दीज थिंग्स कंटिन्यूज, volume changes takes place, again crack formation, again more permeability, more deterioration. तो इसकी एक साइकिल बन जाती है, ये कंटिन्यूअस होते रहता है, and which ultimately results in reducing the durability of concrete. है ना, जो हमने सबसे पहला जो स्लाइड में एक पिक्चर देखा कि वो जो ऑफ शोर स्ट्रक्चर है जिसको जेटी करके बोलते हैं, वो कोई अकस्मात डिस्ट्रक्ट नहीं हो गया, अकस्मात उसका डिटीरियरेशन नहीं हुआ, वो होते गया, कंटिन्यूअस होते गया, ऐसा हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स, फिर डिटीरियरेशन, फिर वाटर इनटेक, फिर सीपेज, फिर कमिंग इन कांटेक्ट विद द केमिकल, सल्फेट, क्लोराइड्स एक्सेट्रा, steel corrosion, continue, and ultimately the structure fails. So these are the significance or significant causes and its importance with reference to the deterioration or the durability of concrete we tried to understand. And we have also learned the definition of the durability. Now friends, we are moving into the next part of the syllabus, that is regarding the water as an agent of deterioration. And आप सबको मुझे लगता है अभी तक के तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि कंक्रीट में पानी का क्या रोल है, और पानी कंक्रीट का कैसा डिटीरियरेशन कर सकता है, नुकसान कर सकता है. डिटीरियरेशन यानी नुकसान. हाउ द कंक्रीट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द डिटीरियरेशन इन कंक्रीट. यू आर एक्सपर्ट, आप अपने दिल से लिख सकते हैं उसके ऊपर. फिर भी हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, और इसके ऊपर एग्जाम में आता है, ये ध्यान में रखना, बिल्कुल जरूर आता है. Concrete's deterioration due to physical and the chemical process associated with water. Physical process and the chemical process are associated with water. And the physical process यानी क्या? Formation of the cracks. Formation of the cracks, permeability of the concrete increasing, and percolation of the water. And the chemical process is percolated water reacts with the reinforcement in presence of the oxygen, converted that reinforcement into the corrosion, as well as the water also plays the important role into the hydration of the cement. We need only 38% of the water. More water is again dangerous. So therefore physical and the chemical process
are the causes for the water to deteriorate the concrete. As we all know that water is a solvent, means lot of the chemicals, they are soluble in water, therefore it is called as the solvent. Like the sea water, groundwater, rivers, lakes, rain, snow, vapor, its molecules, etc. So water exists in all these forms and all these locations. As it's being solvent, lot of the chemicals they dissolve in it. And water has got the property of penetration through the fine pores or the cavities or the cracks. पानी को और क्या प्रॉपर्टी है कि वो बराबर जहां भी पोर्स है, जहां भी वाइड्स है, जहां पे भी कैविटीज है, जहां पे भी क्रैक्स है, उसमें से वो अपना रास्ता निकालता है. So in addition to its solvent property, it also has the property of finding the path or ways into the voids or the cracks. Due to its solvent property, lot of the chemicals dissolve into the water, into this liquid, which accounts for the presence of many ions and gases in some water. पानी में कुछ गैसेस और कुछ आयंस फॉर्म हो जाते हैं, which are causes or instrumental in causing the chemical decomposition of the solid material. ये पानी में जो भी ये केमिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, मे बी क्लोराइड्स, मे बी सल्फेट्स, मे बी एनी अदर टाइप ऑफ द केमिकल्स with which the water gets contacted, they gets dissolved, and this water which has now become the chemical causes the decomposition of the solid materials into the concrete. Water has got again another property, that is that it has got the highest heat of vaporization compared to other liquids at ordinary temperature. इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा हीट लगती है, उष्णता लगती है, जिसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं पानी को, एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स लाइक द पेट्रोल, गैस, रॉकेल एक्सेट्रा, अदर ऑयल्स. तो इसके कारण क्या होता है कि वो वेपर कंडीशन में बहुत कम रहता है और वो लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा रहता है. Hence the water has the tendency to remain in the material in the liquid state rather than to vaporize and leave the material dry. और वो लिक्विड स्टेट में रहता है तो इसलिए उसकी सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी भी रहती है, और सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी रहती है तो उसको सोल्यूबिलिटी के साथ में उसको मूवमेंट भी रहता है इंटरनल. देयरफॉर इन पोरस सॉलिड्स this liquid form of the water or the liquid water along with the chemicals, dissolved chemicals, internally movements, it internally moves. This water has got the internal movement, and changes of structure of water are known to cause disruptive volume changes of many types. तो ये जो पानी वाइड्स में, क्रैक्स में या परमिएबल कंक्रीट में अंदर मूव होता है, अपनी जगह पाता है, घूमता है, तो इसके कारण तो केमिकल रिएक्शन होते ही है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट पे. लेकिन जैसे बहुत कम टेम्परेचर है, 0 डिग्री के नीचे है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू द आइस कन्वर्ट होता है. द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू बर्फ, आइस, ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और उसका वॉल्यूम बढ़ता है और कंक्रीट को क्रैक्स आते हैं. Formation of the ordered structure of water inside fine pores due to this ice conversion,
development of osmotic pressure due to difference in ionic concentration, है ना, वो osmotic pressure develop करता है क्योंकि जो chemicals dissolve होते हैं उनका आयन में कन्वर्ट होते हैं और उनका concentration बढ़ता है. Also builds hydrostatic pressure by differential vapor pressures. तो इन सभी कारणों के कारण यानी पानी जो है ये लिक्विड स्टेट में ज्यादा से ज्यादा रहता है क्योंकि उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये बहुत ज्यादा है. इसलिए ऑल दिस अबो लीड टू हाई इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द मॉइस्ट सॉइल एंड विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिटीरियोरेशन ऑफ द कंक्रीट. नाउ एज वेल, तो ये यानी कंक्रीट जब हार्ड होता है उसमें कंक्रीट क्या नुकसान कर सकता है ये हमने अभी देखा. लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वाटर एज एन एजेंट ऑफ डिटीरियोरेशन और डिस्ट्रक्शन इन द कंक्रीट. Up till now what we try to learn, that how the water remains into the liquid state, how it dissolves all the chemicals, how it finds the path into the concrete cracks and the voids, and which ultimately deteriorates the concrete as well as the reinforcement into the concrete. Now the second bad property of the water is that we know that Abraham's law, water cement ratio is inversely proportional to the strength. So more the water cement ratio, more the voids. More the water cement ratio means more the water into the concrete, more than 38%. The excess water will get evaporated in the duration of the time and more voids are created. More voids, more pores into the concrete. Result makes the concrete more permeable. More water will seep into the concrete, hence less strength. More permeability, बड़े ज्यादा छेद रहेंगे, क्रैक्स रहेंगे कंक्रीट में, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी. As well, more susceptible to grace of water and affects the durability. ज्यादा पोर्स, ज्यादा वाइड्स रहे कंक्रीट में, ज्यादा क्रैक रही तो इनग्रेस ऑफ वाटर यानी पानी अंदर घुसने का प्रमाण ये ज्यादा रहेगा और वो कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी के ऊपर में इफेक्ट करेगा, है ना. कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कैसे कोरिलेटेड है, परमिएबिलिटी से. और परमिएबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कैसे ज्यादा से ज्यादा कोरिलेटेड है, ड्यू टू द वॉल्यूम चेंजेस. और वॉल्यूम चेंजेस क्यों होते हैं, एक तो कंक्रीट में पानी ज्यादा होने से, दूसरा हमने देखा सल्फेट एक्शन, तीसरा हमने देखा कार्बोनेशन, श्रिंकेज एक्सेट्रा, एंड श्रिंकेज एंड द क्रीप्स आल्सो. ओके, सो देयरफॉर द हम अभी तक के पढ़ते आ रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो कम से कम हो, एज लेस वाटर सीमेंट रेशियो एज पॉसिबल. ये कार्बोनेशन के बारे में हमने जो पढ़ा वो स्केच में बताया. जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हार्डन्ड कंक्रीट है, इसमें कहीं तो भी फ्री वाटर अवेलेबल है, यानी जो पानी अभी भी इसमें है, मे बी द इनटू द जेल पोर्स, एंड व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर और रेन वाटर आल्सो, बरसात का पानी आता है तो उसके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रिएक्ट और H2CO3 इज फॉर्म्ड, एंड दिस H2CO3 इनग्रेसेस, अंदर आता है कंक्रीट में. और कंक्रीट का जो CSH है, जो हार्डन्ड भी हुआ है, CSH जेल जिसको बोलते हैं, या बॉक्स कंपाउंड, तो उनके साथ में एक H2CO3 एक्ट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और उसके कारण श्रिंकेज होता है. श्रिंकेज होने के कारण फिर से वॉल्यूम चेंजेस के कारण क्रैक्स होती है. नाउ दे हियर is in the sketch it has been shown how the rusting of the reinforcement or the corrosion of the reinforcement takes place due to the formation of the cracks or the voids at the surface of the concrete, that is between the surface of the concrete and the reinforcement. The cracks are there, micro cracks.
through these micro cracks, either the water will enter, ingress of the water along with the oxygen in the atmosphere. It reacts with the reinforcement Fe, forms the iron oxide Fe2O3 or Fe3O4, and this iron oxide has got the tendency of unsoundness, that is its volume increases and the strength decreases. तो जैसा ये कंक्रीट रस्ट होता है, करोजन होता है, तो इसका कंक्रीट के साथ में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड, वो बॉन्ड निकल जाता है, कम हो जाता है बहुत बॉन्ड, और वो बॉन्ड जैसा कम होता है और इसका एक्सपेंशन भी होता है, तो ये कंक्रीट का जो सरफेस है, ये कंक्रीट का सरफेस ये लोहे को छोड़ देता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉलिंग ऑफ द कंक्रीट कवर. मैंने आपको बोला अभी, SPALLING, स्पॉलिंग ऑफ द कंक्रीट कवर. नोटबुक में लिख लीजिए आप, एक आधे बार कहीं तो भी आपको ये वर्ड काम में आएगा, या कहीं शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हो, व्हाट इज स्पॉलिंग ऑफ द कंक्रीट कवर, हाउ इट ऑकर्स. I will again repeat or explain, try to explain you how this spalling takes place. The reinforcement and the concrete surface which is exposed to atmosphere, इसके बीच में का जो डिस्टेंस रहता है उसको कवर करके बोलते हैं, कंक्रीट का कवर टू द reinforcement. This cover should be sufficient, should be much, so that there should not be any ingress of the water or carbon dioxide which will reach to the reinforcement. क्यों आएगा ये, क्योंकि ये क्रैक्स और वाइड सीधी रहे तो उसके कारण इसमें ये पानी अंदर आएगा, और पानी और ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, इफ दे कम इन कांटेक्ट विद द reinforcement, reinforcement लोहे का होता है, आयरन, और आयरन फिर पानी और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके Fe2O3 और Fe3O4 आयरन ऑक्साइड तैयार होता है. ये आयरन ऑक्साइड को पुराने स्टील की प्रॉपर्टी नहीं रहती, ये फूलता है, स्वेलिंग होता है, और इसका ब्रिटल बनता है, ये लोहे जैसा कड़क नहीं रहता, ये ब्रिटल बनता है, ठिसूल रहता है, और ये फिर फूलता भी है, तो ये कंक्रीट में और क्रैक बढ़ाते जाता है, और ये ऊपर का कंक्रीट जो है वो धीरे धीरे ये लोहे को छोड़ देता है, बॉन्ड उनमें का कम हो जाता है, और वो कंक्रीट निकल जाता है, और ये लोहा एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर को. उसको जो कंक्रीट निकल जाता है, कंक्रीट के जो पपड़े निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉलिंग ऑफ द कंक्रीट. सो दिस इज वन ऑफ द मेन cause for the reducing the durability of concrete. So one of the main characteristic of the influencing durability of concrete is its permeability to the ingress of water, that is percolation of water, oxygen, carbon dioxide, chloride, sulfate and other potentially deleterious substances, है ना. तो कंक्रीट के को कभी परमिएबिलिटी नहीं चाहिए, कंक्रीट ये हरदम इम्परमिएबल चाहिए, क्योंकि उसमें परमिएबिलिटी रही, उसमें क्रैक्स रहे, उसमें वाइड्स रहे, तो पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड बाहर का, सल्फेट, ये मटेरियल कंक्रीट के अंदर घुसेंगे, और वो कंक्रीट को तो डिटीरियोरेट करेंगे ही, लेकिन वो रीइंफोर्समेंट को भी डिटीरियोरेशन करेंगे. So impermeability therefore is governed by the constituents and workmanship used in making the concrete. ये impermeability काय के ऊपर डिपेंड है, कि कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट है तीनों, सीमेंट तो वही है, एग्रीगेट वही है, लेकिन प्रॉब्लम पानी का है, तो कम से कम पानी यूज कीजिए, और वर्कमैनशिप, यानी कंक्रीट करते वक्त हम प्रॉपर कवर दे. अभी मैंने कवर आपको बताया, कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द reinforcement एंड द एक्सपोज सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द एटमॉस्फेयर. इसके बीच में का जो डिस्टेंस है उसको कवर करके बोलते हैं. ये कवर वर्कमैनशिप के ऊपर, वर्कमैनशिप यानी क्या, कि जो साइट पे जो काम करने वाला है वो काम कैसे करवा लेता है, उसको बोलते हैं वर्कमैनशिप.
तो कवर अच्छा हो, कंक्रीट में वाइब्रेशन अच्छा यूज करे, कम से कम वाटर सीमेंट रेशो हो, ऑल दिस प्रिकॉशंस, वर्केबिलिटी अच्छी हो, उसकी कोहिजिव कंक्रीट हो, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हो, all these things are needed, included into the workmanship. So impermeability is governed by the constituents of the concrete as well as workmanship used in making the concrete. So low permeability is achieved by having an adequate cement content, यानी जितना सीमेंट चाहिए उतना, बहुत ज्यादा भी नहीं, sufficiently low free water cement ratio, by ensuring complete compaction of the concrete and by adequate curing. ये चीजें बहुत जरूरी है. अभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्लूड्स द एनवायरनमेंट टू व्हिच द कंक्रीट इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड. ड्यूरेबिलिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? एक तो एनवायरनमेंट यानी जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. द सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कवर टू एम्बेडेड स्टील. जैसे यहाँ पे आपको शायद आपके इस पे दिख रहा होगा ये स्लाइड में कि ये जैसा एक ब्रिज का कॉलम है और ये कॉलम में प्रॉपर कवर न देने के कारण जो कंक्रीट है उसका स्पॉलिंग हो गया, अभी मैंने आपको बताया वैसे, और स्पॉलिंग होने के कारण ये कंक्रीट की पपड़ी निकल गई तो ये अंदर का लोहा दिख रहा है. इट इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर कवर गिवन टू द एम्बेडेड स्टील. अंदर का जो स्टील है उसको एम्बेडेड स्टील बोलेंगे. improper cover, improper compaction resulted into the spalling of concrete. The type and quality of constituent material, यानी जो भी मटेरियल यूज किया है, सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट, इसकी अच्छी क्वालिटी रहने चाहिए. एग्रीगेट भी इनर्ट एग्रीगेट रहना चाहिए, केमिकल रिएक्टिव एग्रीगेट नहीं रहना चाहिए. द सीमेंट कंटेंट है ना, जो हमने टेबल नंबर 5 पे ऑफ पेज 20 ऑफ IS 456 में एक्सपोजर और द ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम सीमेंट कितना रहना चाहिए वो हमने देखा. वो दैट सीमेंट इज मस्ट, वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट, वर्कमैनशिप टू ऑब्टेन फुल कॉम्पैक्शन एंड एफिशिएंट क्यूरिंग, एंड शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर. Last but not the least, shape and size of the member. All these factors influence the durability of concrete. We will detail all these factors in detail in our next lecture. Today we will take the break here.